Vande Mataram, children. Continuing with chapter 13 in bio, that is why do we fall ill. So we are on topic disease and its causes. We have discussed 3 subtopics of that. Continuing with causes of disease. Now what we are going to see, children, here, causes of disease मतलब कैसे disease होती है. There is not only single cause of disease. There can be one or more than causes. So we have to see in detail like extrinsic factors, intrinsic factors and many other factors. Accordingly we will discuss in detail. Even then we are going to discuss about infectious and non-infectious causes. So let's have a look. Okay, children. So starting with causes of disease. Okay, disease means any abnormalities or dysfunctioning in our body of any part. So disease means the discomfort, we know very well, disturbed ease condition. Then what are the causes of disease? ये disease कैसे cause हो सकती है? So there is intrinsic factors as well as extrinsic factors. Okay, any of the factor can be responsible for it. So first we'll see the intrinsic factors means factors present within the body. जिसको हम इंटरनल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. हमारे बॉडी में ही वो फैक्टर्स होते हैं, उसके कारण हमें डिजीज हो सकती है. इंक्लूड्स डिजीज कॉज बाय लाइक माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब कोई ऑर्गन हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है. ओके, सो दैट इज डिसफंक्शनिंग और माल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी पार्ट वी कैन से. सेकेंड, जेनेटिक डिसऑर्डर्स. यस, समटाइम डिजीज इज ऑल्सो हेरिडिटेड. ओके, जीन्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो वो भी इंटरनल होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर होगा. देन hormonal imbalances. Yes, due to hormonal imbalance also some disease can be caused. Allergies, that is also internal factor we can consider. Coming to extrinsic factors. Extrinsic factors means factors present in the external environment. These are the external factors जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं and they can cause disease like microorganism. Microorganism means those organisms which cause disease. They are called as pathogens. यहाँ पे हम pathogen word use करेंगे because they cause disease. So all microorganisms can be considered which cause disease like bacteria, fungus, fungal disease भी होती है, viral disease, protozoal disease, okay, etc. Pollution is also a external factor, क्योंकि अगर हमारे आसपास में गंदगी है, एयर पोल्यूशन है, स्मोकी एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया में, ओके, तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एंड वी कैन हैव एनी डिजीज रिलेटेड टू इट. इम्बैलेंस्ड डाइट. इम्बैलेंस्ड डाइट मतलब अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, सो our immunity will not be built up to fight against it. तो उसके कारण भी हमारी बॉडी में डिजीज हो सकते हैं. देन हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस. हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस मतलब क्या, चिल्ड्रन? किसी किसी को हैबिट होती है, दे आर वेरी मच एडिक्टेड टू सम ऑफ द ड्रग्स लाइक स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल. ओके, ये सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे. अगर वो ये सब कंज्यूम कर रहे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव डिजीज एंड दैट विल बी द एक्सटर्नल फैक्टर्स. So I think children, it's very clear what are intrinsic factors that can cause disease and extrinsic factors. Now coming to types of disease, here you can see congenital disease and acquired disease. Congenital means disease present from birth. कोई बच्चे जब बर्थ होता है तब से उनके अंदर डिजीज होती है, so that can be called as congenital disease.
Acquired disease means disease that develop after birth. ओके, जो बर्थ होने के बाद एक्वायर करते हैं, उनको कोई बीमारी होती है बर्थ के बाद, तो दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड. एक्वायर्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल मीन्स इन्फेक्टिशियस डिजीज, जो इन्फेक्टिशियस इन्फेक्शन से होती है, गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. एंड नॉन communicable disease means it do not get passed from one person to another, so that is considered as non communicable disease. तो acquired मतलब जो जन्म के बाद होती है हमारे पूरी लाइफ में, उसमें दो टाइप्स के हो सकते हैं, कोई communicable भी हो सकती है और non communicable. Okay children, so I hope this is very much clear to you. In your textbook there is example given of a baby suffering from loose motion, तो वो आप डिटेल में रीड करके समझ सकते हैं. एंड देयर इज अनदर टर्म दैट इज इमीडिएट कॉज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट इट. ओके चिल्ड्रन, सो हियर यू कैन सी कॉजेज ऑफ डिजीज में ही ईच डिजीज हैव टू टाइप्स ऑफ कॉज. अगर यहाँ पे अभी देखें तो दो तरीके की दूसरे कॉजेज भी है जिससे होती है ये बीमारी, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. विद दैट इज नंबर 1 इमीडिएट कॉज एंड नंबर 2 कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस. उसके पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म इन्फेक्शन. What do you mean by infection? ये बहुत कॉमनली वर्ड हम यूज करते हैं कि इसके वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कि ओके ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन लाइक. So what do you mean by the term infection? See children, infection means the entry and multiplication of a disease causing organism in the body is called infection. तो infection का मतलब क्या? कोई भी पैथोजन, disease causing organism मतलब मैं पैथोजन बोल सकती हूँ. So pathogen will enter our body and they multiply in and they cause some of the changes, major changes in the functioning of body parts, so it will show the symptoms. Okay, so उसको हम infection बोलते हैं. So let's see, immediate cause मतलब it includes infection caused by the bacteria, viruses, worms और protozoa. मतलब अगर कोई माइक्रोब से डायरेक्ट हो रहा है कोई डिजीज तो उसको हम इमीडिएट कॉज बोलेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, अ बेबी इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन विच इज एन इन्फेक्शन बाय वायरस. सो वायरस इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द डिजीज. यहाँ पे इमीडिएट कॉज कौन है? वायरस है, क्योंकि डायरेक्ट उससे ही हो रहा है और कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो बच्चे का लूज मोशन के लिए. सो विच में एंटर बेबी बॉडी बाय ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. तो वायरस आया कहाँ से? मे बी फ्रॉम अनक्लीन वाटर. ओके, वो रीजन हो सकते कि उसके बॉडी में एंटर कैसे हुआ वो वायरस. ओके, नाउ सेकेंड कॉज इज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस. कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस का मतलब क्या बेटो? कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, मेन कॉज जो है उसके साथ ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज जो है दे कॉन्ट्रीब्यूट इन कॉजिंग द डिजीज. जैसे कि हेल्प कर रहे और बढ़ावा दे रहे हमारे अंदर डिजीज डेवलप होने के लिए. तो व्हाट आर द कॉजेज? लेट्स सी. लैक ऑफ गुड नॉरिशमेंट. यस, मतलब अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खा रहे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे तो उसे बढ़ावा मिलता है एंड वी कैन सफर फ्रॉम इट. जेनेटिक फैक्टर्स और डिफेक्ट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यस, क्योंकि कोई कोई डिजीज जो होती है वो डायरेक्ट जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के कारण भी हो सकती है. जैसे कि एग्जाम्पल आई कैन से डायबिटिस. ओके, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर आपके पेरेंट्स में है तो वो आपको हो सकती है. देन पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज. यस, पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज मतलब अगर वो फैमिली थोड़ी पुअर है, कैन नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस फूड, देन दैट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द कॉज ऑफ डिसीज. एंड अगर
कोई बीमार है, पेशेंट है, वो ऐसी एरिया में रहता है जहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर सेंटर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, जिसको हम पब्लिक सर्विसेज बोलते हैं, तो दे विल नॉट गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट, सो दे विल ऑल्सो सफर ड्यू टू डिजीज। सो आई होप चिल्ड्रन ये एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा। लेट मी गिव यू अ लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोविड-19। कोविड-19 जो डिजीज है, ओके, तो दैट इज, उसका इमीडिएट कॉज क्या है? वायरस। मतलब वो डायरेक्ट किससे होता है? वायरस से होता है। तो उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स है? कंट्रीब्यूटरी कॉजेस क्या है कि लैक ऑफ गुड नॉरिशमेंट भी है, अगर हम प्रॉपर सैनिटेशन नहीं, दूरी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते हैं, ओके, तो हो सकता है। अगर हम प्रॉपर खाना नहीं लेंगे, इम्यूनिटी बूस्टर्स नहीं लेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इट। सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग काढ़ा एंड विटामिन सी boosters, okay, so that will all help to remain safe from this disease. Okay, then coming to infectious and non-infectious causes. Okay, so children just see, अभी हमने डिस्कस किया immediate cause and contributory causes of disease. तो immediate cause can be categorized into infectious disease और non-infectious disease भी हो सकता है, okay, immediate. So कैसे infectious disease भी हो सकता है और non-infectious भी हो सकता है? See, if caused due to attack of pathogens, अगर पैथोजन से हो रहा है तो वो infectious disease बोला जाएगा, क्योंकि वो माइक्रोब से या पैथोजेंस की एंट्री की वजह से इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं हमारे बॉडी में। एंड नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज का फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉज बाय फैक्टर्स अदर देन पैथोजन, ओके, इमीडिएट हो सकती है बट दैट इज कॉज बाय अदर देन दी पैथोजन, वो पैथोजन से नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, कॉज ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, यस, ये इन्फेक्टिशियस डिजीज जो है वो ज्यादातर एक्सट्रिंसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, क्योंकि ये पैथोजेंस एक्सटर्नली एंटर करते हैं हमारे बॉडी में। हियर सेकेंड पॉइंट, इन नॉन इन्फेक्टिशियस में दे आर मेनली कॉज ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स, वो हमारे अंदर के फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज के लिए। थर्ड, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इन्फेक्टिशियस जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है क्योंकि पैथोजेंस ट्रांसमिट हो सकते हैं। एंड हियर नॉन इन्फेक्टिशियस डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पे इन्फेक्टिशियस में ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर थ्रू, तो कैसे ट्रांसमिट होंगे? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और सम मीडियम्स लाइक एयर, वाटर, वेक्टर्स एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे तो ट्रांसमिट होना ही पॉसिबल नहीं है नॉन इन्फेक्टिशियस में, बट इट कैन ट्रांसफर ऑन हेरिडेटरी बेसिस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देन फिफ्थ पॉइंट of infectious disease, community hygiene can reduce the occurrence of disease, yes, क्योंकि अगर हमारी कम्युनिटी हाइजीन, अब अगर हमारा सराउंडिंग क्लीन रहेगा तो ये पैथोजेंस कम डेवलप होंगे, ओके, दे विल नॉट ब्रीड एंड दे विल नॉट इंक्रीज इन नंबर, सो वी कैन रिड्यूस बाय कंट्रोलिंग कम्युनिटी हाइजीन। बट हियर नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज, उसमें कम्युनिटी हाइजीन इज नॉट इफेक्टिव, ओके, तो यहाँ पे पर्सनल हाइजीन इफेक्टिव होता है। जितना हम अपनी केयर करेंगे, अपनी हाइजीन ठीक रखेंगे, तो उतना हमें बेनिफिट मिलेगा एंड वी विल बी सेफ फ्रॉम दिस डिजीज। लेट्स सी द एग्जांपल्स फॉर इट। इन्फेक्टिशियस डिजीज का एग्जांपल है कोलेरा, मलेरिया, ओके, जो पैथोजेन से होते हैं। एंड नॉन इन्फेक्टिशियस का एग्जांपल है डायबिटीज, गॉइटर, जो नॉर्मली इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, एंड इंटरनल फैक्टर्स। जैसे कि गॉइटर है, तो गॉइटर, वाई गॉइटर इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी? बिकॉज अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है, देन गॉइटर विल डेवलप। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू।
about causes of disease and infectious and non-infectious causes. Okay, thank you. Have a nice day.